Hello students, let us know about electric dipole. So as you know that di means two, pole means your charge. So electric dipole consists of two equal and opposite charges. That is, suppose this one is plus q, this one is minus q, and this system is called as an electric dipole. Okay, electric dipole. Now this distance is considered as 2L. Okay, for example, an electron and a proton can form a dipole. Similarly, Na plus ion and Cl minus can constitute a dipole. Similarly, any charge, suppose 4 minus 4 coulomb plus 4 coulomb, they can constitute a dipole. Now, suppose we have three charges like this. This is plus q, this is plus q, and this is minus 2q. यहाँ पे तीन चार्ज है, ये भी डाइपोल हो सकता है. यहाँ मल्टीपल डाइपोल होंगे, यहाँ मल्टीपल डाइपोल होंगे, यहाँ दो डाइपोल होंगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू इधर, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू इधर. यहाँ एक डाइपोल हो जाएगा, यहाँ एक डाइपोल हो जाएगा. समझे? मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और यहाँ माइनस 3q है. ये भी तीन डाइपोल यहाँ हो सकते हैं. एक माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सिंबल है P. डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी whose magnitude is either charge into distance between the dipole. Case is its direction is from minus q to plus q, minus q to plus q. Remember, this distance should be very small, then only you can call it as a dipole. Otherwise, suppose one charge is here, one charge is here, distance is very large like 5-10 meter, then these two charges cannot be compared as a electric dipole. The distance should be very less. So this is the formula for electric dipole moment, and this is the direction. Now the unit will be coulomb into meter or start coulomb into centimeter, and we can find the dimension. Let us find out electric field intensity due to a dipole. So in this topic we have two long questions. One is at axial point, and also this is called as end on position. I will explain later on. And also this is called as tan A position. That means we are going to find out the electric field intensity due to dipole at any point in the axis, or end on position, or tan A position. Let us know first what is axial point and how you can find the dipole. Look here. So this the heading is dipole at axial point. Okay, now let us see here. Suppose it's a line on which two charges are placed, plus q and minus q. This is the point A, this is the point B, this is the center of dipole. This distance is 2L as you assumed earlier. तो ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है आपका, ये एक्सियल लाइन है. ठीक है. तो एंड ऑन क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि whenever you will find the electric field intensity at axial line, you cannot opt a point in between these two charges. The point should be end on, बाहर होनी चाहिए. तो मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ एक P पॉइंट, और सेंटर ऑफ डाइपोल से उसका डिस्टेंस जो है O से R है. चलिए P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं. जैसे कि हमको पहले पता है
फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर कहीं पे भी एक से ज़्यादा चार्ज होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले इंडिविजुअली हर एक चार्ज के लिए फील्ड निकालेंगे, फिर वेक्टर वाली ऐड कर देंगे। तो यहाँ दो चार्ज है, एक तो प्लस क्यू है, एक तो माइनस क्यू है। तो अगर प्लस क्यू की बात करें, प्लस क्यू जो है वो अभी यहाँ से यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक आर है। तो प्लस क्यू जो है वो आर प्लस एल डिस्टेंस पे है प्लस पी पॉइंट से। सिमिलरली जो माइनस क्यू है वो अभी आर माइनस एल पॉइंट पे है। अभी आप निकाल सकते हो ये। तो प्लस क्यू की बात करें अगर, तो फील्ड तो हमेशा अवे होता है, दूर होता है उससे, रेडियली अवे होता है। तो ये हो जाएगा आपका E1 मान लीजिए प्लस क्यू के लिए। तो माइनस क्यू के लिए इनवर्ड होता है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा लेफ्ट। ये दोनों फील्ड हमको मिल गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E1 हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब E2 हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अभी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू वेक्टर वाली ऐड करेंगे, तो ये दोनों के बीच जो है एंगल 180 डिग्री है। जैसे कि पता है हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे E2 माइनस E1, क्योंकि E2 ज़्यादा है, E1 कम है। तो वेक्टर वाली हम ऐड करने से तो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये जो डायरेक्शन है वो एलोंग लार्जर वन होगा, डायरेक्टेड एलोंग दैट इज़ E2 जो लार्जर है, मतलब इस तरफ होगा। ध्यान से देखिए। तो अभी जो फील्ड होगा यहाँ E2 की तरफ होगा, मतलब नेट फील्ड जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है। तो अभी अगर कैलकुलेशन की बात करें, इजी है बिल्कुल, कैलकुलेट कर देते हैं। के क्यू आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर एल होल स्क्वायर। ठीक है। तो अभी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे उससे हम लोग मिल जाएगा आराम से। देखिए हम लोग पा सकते हैं के क्यू कॉमन लेते हैं, ऊपर आ जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर आर माइनस एल होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल होल स्क्वायर। फिर से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4RL। ठीक है। ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। तो अगर इसको हम क्या कर देते हैं, क्यू इधर है तो 2KR इंटू 2L हमने क्या किया, देखिए 4RL को हमने स्प्लिट कर दिया, यहाँ 2R यहाँ 2R यहाँ 2L। तो जो Q इंटू 2L है वो P है हमारा, पहले से पता है, डाइपोल मोमेंट है। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में हमको मिल गया 2, ये आ जाएगा P, ये आ जाएगा R, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अभी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ई आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, मगर ये स्केलर फॉर्म है। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इधर देखिए डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट और जो नेट फील्ड है वो दोनों पैरेलल है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट है, एंगल 0 है। इसीलिए अगर वेक्टोरियल लिखेंगे तो E इज इक्वल टू बस वेक्टर में ही कन्वर्ट कर देंगे दोनों साइड, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया आपका जनरलाइज फार्मूला। अगर मान लीजिए शॉर्ट डाइपोल हुआ, शॉर्ट डाइपोल मतलब डाइपोल का जो सेपरेशन है वो बहुत कम होगा। अगर 2L मान लीजिए फार लेस देन L, तो क्या हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर है ये वाला आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा R4, ये हो जाएगा R4, ये नीचे R4 आ जाएगा, ऊपर R है। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा आपको E इज इक्वल टू 2P/4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्मूला हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू 1/RQ। ठीक है, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो पिछले वाला जो है जनरल डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल मतलब देख लीजिए, मान लीजिए 2L एक जगह 12 सेंटीमीटर है, R मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, ये जनरल कोड फार्मूला है। मान लीजिए 2L है 10 - 6 मीटर
और आर है 6 मीटर, तो ये वाला शॉर्ट डाइपोल हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट को हमको बोल सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, और उसे हम कह सकते हैं टैन बी पोजीशन, और कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना हो। ये चारों टर्म सेम है, इक्वेटोरियल पॉइंट, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, टैन बी पोजीशन और परपेंडिकुलर पोजीशंस। ना लुक हियर, आ गया डाइपोल, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लीजिए ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये पी पॉइंट है इक्वेटोरियल पे जो आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से फील्ड निकालेंगे। अभी ये एल, ये आर, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तभी ई आ जाएगा आपका E1। ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस क्यू के लिए पी पे निकालेंगे वो इनवर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा E2। ध्यान से देखिए, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ जो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट इज़ KQ/R²। मतलब ये जो डिस्टेंस है अभी R² L² का रूट ओवर है, तो अभी ये आ जाएगा R² + L²। E1 और E2 दोनों सेम है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, देख लीजिए। तो फिर ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा ये, और ये अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो दो फील्ड हुआ E1 E2 हम लोग इसे ऐड करेंगे। ठीक है, E1 और E2 को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये दोनों फील्ड हुआ, हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अभी रिजल्व भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे रिजल्व करके हम लोग ऐड करेंगे। देख लीजिए, ये E1 है, ये E2 है, ये थीटा है और ये थीटा है। रिजल्व करेंगे तो इस साइड आ जाएगा E1 cos थीटा, सॉरी इधर आ जाएगा E1 sin थीटा, और इधर आ जाएगा E2 sin थीटा, और कॉस कंपोनेंट दोनों जो है वो एक साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, अभी ये E हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, E1 जो है वो E2 सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड, तो अभी E हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक है, तो अभी cos थीटा पता करते हैं, देख लीजिए ये cos थीटा होगा दिस बाई दिस, ध्यान से देखिए। तो इधर cos थीटा आपको मिल जाएगा L/√R² + L² बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाई कर देते हैं वैल्यूज। अगर हम लोग नेट फील्ड निकालेंगे तो रिजल्टेंट फील्ड जो हो जाएगा वो 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा, 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखिए अभी E = E1 E2 cos थीटा, सो E = 2E1 cos थीटा, सो ये 2 हुआ, ये Q/दिस, ये E1 हुआ, ये cos थीटा हुआ। तो Q × 2L एक साथ में लिख दिया हम लोग, वो P है, डाइपोल मोमेंट है, और ये पावर 1, ये पावर हुआ हाफ, ये पावर 3/2 हो गया। तो ये फाइनल फार्मूला हो गया, देखिए P/4πε0 R² L² 3/2 स्केलर फॉर्म में। अगर डायरेक्शन की बात करें, ध्यान से देखिए, जो दोनों का फील्ड है वो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो ओबियसली किस तरफ होगा, तो ये ओबियसली डायगोनल पे, कॉमन डायगोनल पे होगा। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फील्ड टुवर्ड्स राइट, और डाइपोल मोमेंट जो है वो हो जाएगा -2 प्लस, तो माइनस टुवर्ड्स प्लस मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। देख लीजिए, देखिए तो रिजल्टेंट फील्ड जो है टुवर्ड्स राइट है और डाइपोल मोमेंट जो है टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, सिंस ये दोनों अपोजिट है तो इसलिए हमने यहाँ माइनस डाल दिया। देख लीजिए, ये स्केलर फॉर्म में प्लस था, यहाँ स्केलर हटा दिया, यहाँ माइनस डाल दिया। माइनस क्यों डाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट वो दोनों अपोजिट ही है। तो अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो ध्यान देखिए, अगर शॉर्ट डाइपोल हो तो R विल बी फार ग्रेटर देन L, तो ये डिनोमिनेटर है R² + L² 3/2, ये हो जाएगा R² 3/2 R3। तो ये हो गया क्या, E = -P/4πε0 R3। ठीक है, अभी देखिए यहाँ था शॉर्ट डाइपोल के लिए 2kp/R3, यहाँ हो गया kp/R3। डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि एक्सियल पे फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, और ये अपोजिट होता है। ठीक है,
Thank you guys.